আমার বাংলা শুরু করব তার কথা দিয়ে, যিনি বিধানসভা ভোটের আগে ফুল বদল করেছিলেন। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিজেপিতে পাড়ি দিয়েছিলেন বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল সাংসদ সুনীল মণ্ডল, আর এখন তিনি বলছেন তিনি নাকি তৃণমূলেই আছেন, ভবিষ্যতেও তৃণমূলেই থাকবেন, এরকমই দাবি করছেন সুনীল মণ্ডল। প্রতিনিধি শরদিন্দু আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন, শরদিন্দুর থেকে আরো বিস্তারিত জানবো। শরদিন্দু, আজ হঠাৎ এরকম দাবি সুনীল মণ্ডলের কেন? দেখো, এর আগেও যতবার সুনীল মণ্ডল বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূলে ফেরার ইচ্ছা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন, ততবারই জেলার ওপর থেকে নিচুতলার সব নেতারাই তারা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তারা জানিয়েছেন পরিষ্কার যে গদ্দারদের দলে নেওয়া যাবে না। অন্য অনেকে বিজেপি থেকে যারা আসবে তারা স্বাগত, কিন্তু সুনীল মণ্ডলের মতো লোকেদের নয়। কারণ সুনীল মণ্ডল বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর বিভিন্ন যে জনসভাগুলি হয়েছিল তাতে প্রকাশ্যে দলের নেতা এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন, এমনটাই বলছেন দলের জেলা নেতারা। এবং তারা বলছেন যে সেই নেতা এখন সংসদে ওয়েলে নেমে তৃণমূলের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন। এমনকি তিনি যখন বলছেন যে তিনি তৃণমূলে ছিলেন, তৃণমূলেই আছেন, তিনি বিজেপিতে কোনোদিন যাননি। ফিরবো বললেই ফেরাটা বোধহয় অত সহজ হয় না, অন্তত সুনীল মণ্ডলের ক্ষেত্রে তো তাই। সুনীল মণ্ডলের আজকের বক্তব্য আমরা একটু শুনবো। আমি তৃণমূলেই আছি, তৃণমূলেই থাকবো, আগামী দিনেও থাকবো, আছি থাকবো। কিছু কিছু নেতৃত্বের সঙ্গে মানব অভিমান থাকতে পারে, সেটা আলাদা জিনিস। চাইলেই ফেরা যায়। অনেকেরই মনে পড়ছে ভোটের প্রচারে কাটোয়ার তৃণমূল প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে সুনীল মণ্ডলের তীব্র আক্রমণ। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নন, তখন সুনীলের নিশানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। যতদিন না অভিষেক করা হয়েছে ততদিন মমতা ব্যানার্জি দুর্নীতিগ্রস্ত খাতায় নাম লেখে। সেই সুনীল এখন বলছেন তৃণমূলেই আছি। কি বললেন কাটোয়ার তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শুনুন। নতুন করে বলার কিছু নেই, আমার দলের নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা সেটাই মেনে নেব। তবে বাস্তবে এই ধরনের মানুষদের রাজনীতিতে না থাকাই উচিত। সুনীল মণ্ডলের সাম্প্রতিক মন্তব্য শোনার পর ক্ষোভে ফুঁসছেন শাসক দলের জেলার নিচু তলার কর্মীরা। নির্বাচনের পূর্বে কাটোয়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির নামে আজেবাজে বলে গেলেন, যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নামেও আজেবাজে বলে গেলেন, তিনি আজকে বলছেন যে আমি তৃণমূলই আছি, আমি তো বিজেপিতে কোনোদিনই যাইনি। তো এরকম মিথ্যাবাদী লোককে কাটোয়ার মানুষ পছন্দ করে না। সুনীল মণ্ডল আমাদের এলাকার সাংসদ, আমাদের এলাকায় যে মুহূর্তে ঢুকবে আমরা গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবো, কেন ওনার মতো মিথ্যাচারীকে আমাদের দরকার নাই। উনি কিছুদিন আগে বিজেপিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন নাকি শুনছি তিনি আবার চাইছেন যে তৃণমূলে ফেরার। এটাই যদি হয় তাহলে এটা আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। আমি তৃণমূলেই আছি, তৃণমূলেই থাকবো, আগামী দিনেও থাকবো, আছি থাকবো। 15ই আগস্টের আগে দেশবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সরাসরি শুনবো। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम
संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया। इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उसी तरह साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयाँ, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूँ। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विषय में भी चिंतित रही है। सरकार उन मजदूरों और उद्यमियों की ज़रूरतों के प्रति भी संवेदनशील रही है जिन्हें लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी ज़रूरतों को समझते हुए सरकार ने पिछले वर्ष उन्हें राहत प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। इस वर्ष भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक वर्ष की अवधि में ही 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है। हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परौख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में
लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। मूलतः भारत गाँव में ही बसता है, इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है। ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता पर दृढ़ विश्वास के साथ सरकार ने रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है। सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के नवीन प्रयासों की विश्वव्यापी प्रशंसा हो रही है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार होता है, तब उसका सकारात्मक प्रभाव देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है। इसके अलावा जन कल्याण की योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की बदौलत अपना खुद का घर होने का सपना अब साकार हो रहा है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में किए गए अनेक सुधारों से हमारे अन्नदाता किसान और भी सशक्त होंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त होगी। सरकार ने प्रत्येक देशवासी की क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ का ही उल्लेख मैंने किया है। प्यारे देशवासियों, अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूँ। सर्वांगीण विकास के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हो रहा है। यह बदलाव प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर हमारी प्रभावी भागीदारी में तथा अनेक देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में परिलक्षित हो रहा है। प्यारे देशवासियों, 75 साल पहले जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी, तब अनेक लोगों को यह संशय था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ऐसे लोग शायद इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की जड़ें इसी भारत भूमि में पुष्पित पल्लवित हुई थी। आधुनिक युग में भी भारत बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार देने में अनेक पश्चिमी देशों से आगे रहा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जनता के विवेक में अपनी आस्था व्यक्त की और हम भारत के लोग अपने देश को एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में सफल रहे हैं। हमारा लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, अतः संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता की सेवा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद, संवाद और निर्णय करने का सर्वोच्च मंच हमें उपलब्ध है। यह सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का यह मंदिर निकट भविष्य में ही एक नए भवन में स्थापित होने जा रहा है। मैं विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों की सराहना करता हूं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की है और आवश्यकता पड़ने पर साहस बलिदान भी दिया है। मैं सभी प्रवासी भारतीयों की भी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने जिस देश में भी घर बसाया है, वहां अपनी मातृभूमि की छवि को उज्जवल बनाए रखा है। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं। यह वर्षगांठ मनाते हुए मेरा हृदय सहज ही आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 के सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना से भरा हुआ है।